السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منتخبہ حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 9 ہے. ہر درس اپنی جگہ پر ایک مکمل تقریر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک نہیں سنا ہے تو اب آپ کے لیے سننے کا فائدہ نہیں ہے. ہر اپنی جگہ پر ایک بات ہے. کل ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی، اس کی تشریح تھوڑی سی کر کے آگے بڑھتے ہیں. یہ حدیث نمبر 5 ہے ایمانیات پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے مخلصاً خالص ہو کر کے، الا فتحت له ابواب السماء، جب وہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ عرش تک اس کا معاملہ کھل جاتا ہے، یعنی جنت کا راستہ کلیئر ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ مجتنب الکبائر، کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہو. میں نے کل بتایا تھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت چونکہ ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، 2 کنڈیشن یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، ایک مخلصن کی اور ایک گناہ کبیرہ سے بچنے کی. مخلصن میں 3 چیزیں داخل ہوتی ہیں. خالص کا مطلب یہ ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرتا ہو، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس کے اندر ریاکاری نہ ہو اس لا الہ الا اللہ کے کہنے پر. مثال کے طور پر 2 آدمی کو دیکھا ہے تو بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خالص ہونا چاہیے. اور جو کہہ رہا ہے اس کے اندر نفاق نہیں ہونا چاہیے. جو منافقین تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے تھے، تو نفاق نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں اگر نہیں پائی گئیں تو یہ پہلی شرط مکمل ہوئی کہ بندے کو لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہر حال میں حاصل ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. جب گناہ کبیرہ کی بات آتی ہے تو اس میں 2 گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ اللہ کے خلاف جو بڑا گناہ ہے، مثال میں نماز کا چھوڑنا ہے، روزہ کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کے خلاف گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا بندوں کے خلاف گناہ کبیرہ ہے، کسی کا حق مار لینا ہے، کسی کی عزت لوٹ لینا ہے، جان بوجھ کر کے پلاننگ کر کے مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے. یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں. تو اگر گناہ کبیرہ سے بچا رہا اور خالصاً اس نے کہا تو وہ اس کی فضیلت پائے گا. اس میں ہم نے اور تشریح بھی کی تھی. جو آج بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یہ دماغ میں نہیں آنی چاہیے بات، کیونکہ کراس کوسچن بھی ہوتا رہتا ہے. یہ دماغ میں بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ بھی دماغ میں نہیں آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ ہر حال میں فائدہ دے گا. جیسے ایک آدمی لون پر لون لیتا رہے، لیکن جو سیلری پا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لون پہ لون لیتا رہا لہذا سیلری اس کی ختم ہو گئی. سیلری ملتی رہے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ دونوں کو مائنس کرنے کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ سیلری اس نے اٹھائی تھی 10,000 کمپنی سے، لون لیا ہے اس نے 12,000 روپے، لہذا 2,000 روپے اس کے اوپر ڈیو ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لون اٹھانے والا جو ہے وہ سیلری سے محروم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. لہذا یہ دماغ میں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب باتیں ایسی کرتے ہیں تو پھر دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تو گناہ سے تو بچ ہی نہیں پا رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ ہر حال میں فائدہ دے گا. شرط وہ پہلی والی شرط پائی جانی چاہیے کہ مخلصاً ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ہر حال میں فائدہ دے گا. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ نیکی دیکھے گا.
اور जिसने जर्रा बराबर बुराई की वो क़यामत में अपनी बुराई देखेगा। ये कभी बहुत से लोग आवाम जवाब देते, अरे नमाज पढ़ने का क्या फायदा, झूठ बोलते हैं। भाई झूठ बोलने का गुनाह मिलेगा, नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। क़यामत में अल्लाह ताला दोनों को माइनस प्लस करके बता देगा। इसीलिए तो आखिर आप ही के लिए तो मुसलमानों के लिए ही तो मीज़ान रखी जाएगी क़यामत में कि ये मालूम हो जाए दाढ़ी रखे हैं झूठ बोलते हैं। अरे आपकी क्या मशवरा है कि झूठ बोलने लगा दाढ़ी मुंडा दे तो क्या एक गुनाह होगा, 2 गुना हो जाएगा? तो झूठ बोलने का गुनाह होता रहेगा, दाढ़ी मुंडाने का भी गुनाह होता रहेगा। तो ये कौन सा मशवरा आप उसको दे रहे हैं? एक आदमी ने कोई एक मर्डर कर दिया, अब आप उसको ये मशवरा दे दे तुमने तो एक कर दिया, आप 20 और मारो है? तो 20 को 19 का और मजीद गुनाह मिलेगा। ये आवाम की गलती है जो इस किस्म की बातें करती रहती है, और ये सब शैतानी चालें होती हैं। तो ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं या कोशिश करना चाहिए गुनाहों से बचने की। और ये भी चांसेस हैं, तीसरी बात कह रहा हूं, ये भी चांसेस हैं कि अल्लाह ताला इस कलमे की बरकत से आपको गुनाह से महफूज कर दे। इसके भी चांसेस हैं। अगर आप मुखलिसन इस बात को कहेंगे तो परवरदिगार आलम की जात उसको उस कलमे से इतनी मोहब्बत है, उस मोहब्बत की बुनियाद पर आपको गुनाह से बचा करके नेकियां आपसे सरदस्त कराएगा। लिहाजा ये नहीं करें कि इतनी बात सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि नहीं अब कलमा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस नंबर 6 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन याला बिन शद्दाद قال حدثني أبي شداد وعبادة بن صامت رضي الله تعالى عنهما حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني أهل الكتاب قلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الأبواب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم رواه أحمد التربانی۔ بزار نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کے راوی ثقہ ہے۔ یہ حدیث غور سے سنیے گا۔ یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو شداد نے مجھ سے یہ روایت نقل کیا، حالانکہ اور اس وقت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ کیا بات کہی؟ کہہ رہے ہیں کہ کننا عند النبی، ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 لوگ۔ فقال هل فیکم غریب، حضور نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو اجنبی ہے؟ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بڑے آدمی کو کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے تو کیا بولتا ہے، یار سب کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہے؟ ایسے اسٹائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل فیکم غریب، کہ تم میں سے کوئی باہری آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ راوی اپنے طور پر کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نے نہیں کہا، انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ هل فیکم غریب یعنی اہل الکتاب، کہ کوئی یہودی یا نصرانی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کا اپنا آئیڈیا ہے، ورنہ ایک لفظ جو حضور نے فرمایا وہ کافی تھا کہ کوئی اجنبی آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے جو اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، میری شخصیت کے بارے میں نہیں جانتا ہو اور اچانک بیٹھا ہو۔ قلنا لا یا رسول اللہ، کہا سب اپنے لوگ بیٹھے ہیں، سب اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ فامر بغلق الباب، کیا دروازہ بند کر دیجیے، کیا فرمایا؟ دروازہ بند کر دیجیے۔ وقال ارفعوا ایدیکم، اور سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو، سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ وقولوا، اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ، اور کہو لا الہ الا اللہ۔ سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ میں بھی اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ حدیث نہیں جانتا تھا، یہ پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں۔ فرفعنا ایدینا، ہم لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے۔ ثم بدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھائے، یعنی آپ نے کہا بھی اور خود بھی اٹھایا۔
सुम्मा वदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहू, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को नीचे कर लिया। यकीनी बात है जब उन्होंने नीचे किया होगा तो सब ने नीचा कर लिया होगा, उसका जिक्र नहीं है। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक तेरा, अल्लाहुम्मा इन्नका बअस्तनी बिहाज़िहिल कलिमा, कि अल्लाह तूने मुझे इस दुनिया में मबूस फरमाया और इस ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के साथ, व अमरतनी बिहा, और मुझे हुक्म दिया तूने इस कलमे का कि ये लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, व वअदतनी, और तूने मुझसे वादा किया है इस कलमे की बुनियाद पर अलैहिल जन्ना, कि इस कलमे को कहने वाला जन्नत में जाएगा। व इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, ऐ रब्बे दुल जलाल, तू तो अपने वादे से कभी भी मुखालफत नहीं करता, तू जो वादा करता है वो पूरा करता है। सुम्मा क़ाल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला, लोगो खुश हो जाओ, अबशिरू, खुश हो जाओ, फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, अल्लाह ताला ने तुम सबको माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने तुम सबको माफ कर दिया। अब ये हदीस आप देखें, इसमें जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात यह है कि ये दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है भाई, अगर दूसरा भी जान गया तो क्या प्रॉब्लम है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत लेकर के आए हैं, वो दावत तो कोई ऐसी ही नहीं है कि अंडरग्राउंड है, सीक्रेट दावत है, दूसरे जानना नहीं है। पहला सवाल ये किया कि तुम में से कोई अजनबी तो नहीं है, वो भी एक सवाल है। दूसरा ये फिर क्या कह रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दो, तो इसकी जो वजूहात है वो ये है कि बात की अहमियत बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा बंद करवाया कि ये बड़ी खास बात मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, एक वजह। दूसरी वजह, इन्हीं लोगों के बारे में जो बैठे हुए थे फिलहाल, इन्हीं के बारे में अल्लाह ने हो सकता है कि वही की हो कि आप इन्हीं को जन्नत की खुशखबरी सुनाइए। सिर्फ सारे लोग इससे इस वक्त मुताल्लिक नहीं हैं, बल्कि इतने लोग जो बैठे हुए हैं आपके सामने यही मुतासिर है, लिहाजा आपने दरवाजा, यही मुताल्लिक हैं, लिहाजा आपने दरवाजा बंद कर दिया कि दूसरा आदमी कोई नहीं आवे, क्योंकि इन्हीं लोगों के बारे में मुझे गाइड किया गया है कि आप बता दीजिए, इसलिए हो सकता है दरवाजा बंद करा दिया गया हो। अच्छा, अब ये जो तीसरी बात कही कि साहब अजनबी कोई आदमी तो नहीं है, तो हम लोग भी जब दर्स पढ़ाते रहते हैं, आपको मालूम है जब ऐसी हदीसें पढ़ाई जाती हैं तो बाद हदीसें ऐसी हैं कि उसको पूरे एक्शन से पढ़ाया जाता है, ताकि वो लगातार जो हुजूर के जमाने से सुन्नत चली आ रही ना, वो सुन्नत बाकी रहे। मतलब हम कहेंगे दरवाजा बंद करो, हम बोलेंगे पढ़ाते वक्त दरवाजा बंद करो, ताकि वो जो सिलसिला है वो सिलसिला क्या रहे, क़यामत तक कायम रहे, तरीक़े रसूल। बहरहाल, तो हम लोग भी पढ़ाते वक्त जो हदीस जब पढ़ाते हैं खासकर, या कोई कुरान की बड़ी खास अहम आयत होती है, और ये देखते हैं कि ये बात अवाम को अगर मालूम हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, अवाम इसका गलत माना समझ लेगी, तो हम उस वक्त तंबीह करते हैं उनको, किसको, पढ़ाने वालों को, देखो ये बात तुमसे की जा रही है, लेकिन ये बात आप अवाम से नहीं करेंगे, ये आपको मसला मालूम होना चाहिए, ये बात मालूम होना चाहिए, लेकिन अवाम को ये बात आप स्टेज से बयान नहीं करेंगे। कोई मसला पूछ जाएगा तो बात करेंगे, लेकिन अवाम को पब्लिकली ये बात नहीं कही जाएगी। और ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी होता रहा है। एक हदीस में नकल कर देता हूँ ताकि आपको ये बात मालूम हो, क्या बात हुई, मौलाना लोगों को मालूम होना और अवाम को नहीं मालूम होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उठे और उठने के बाद आप जो है वो लोग ये समझे कि यहीं कहीं करीब में जा रहे हैं, और आप उठ करके एक बाग के अंदर जाकर बैठ गए। उस वक्त मदीने के हालात बहुत टाइट चल रहे थे। टाइट इस माने करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े हुए थे लोग कि किसी तरह आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, तो बड़ी सिक्योरिटी सहाबा टाइट रखते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अचानक उठे और उठ करके चले गए। अब ये लोग सोचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद इस्तिंजा करने गए हों, बगल में ही घर है, हो सकता है घर चले गए हों। थोड़ी देर के बाद इन लोगों को हुआ कि आए नहीं और ना ये बोल करके गए कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूं, अब आप लोग जाइए, ये भी बोल कर नहीं गए। तो जरा सहाबा को तशवीश हो गई कि अल्लाह के रसूल गए किधर। तो अलग अलग तरफ लोग निकले
जिस तरफ उनको आइडिया होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए होंगे इस्तिंजा करने, कोई इधर गया कोई इधर गया, तो पता नहीं चला कि अल्लाह के रसूल कहाँ चले गए। तो अचानक जो है वो एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाजा हुआ कि शायद जो है हो सकता है बाग में बैठ गए हो जा करके। तो मदीने के करीबी बाग था जहाँ पे जन्नतुल बकी है, वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर बैठे हुए हैं, और उसमें जहाँ पानी जाने का रास्ता था, वो पानी के जाने के रास्ते से ये निकल करके गए, बाग में चले गए, और जाकर अल्लाह के रसूल बताया कि हम लोग ऐसा परेशान हो गए, लंबी चौड़ी बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा तुमसे एक बात बताता हूँ, जाओ, तो एक जैसे कैफियत होती ना, जाओ और सबको बता दो कि जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह का सब जन्नत में जाएगा। अब अबू हुरैरा के लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम हो गया कि जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जन्नत में जाएगा। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं जब जाऊंगा बोलूंगा तो लोग हमारी बात मानेंगे नहीं, ये बात जब हम बोलेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे जन्नत में जाओगे, तो कोई हमको आप अपनी निशानी दे दीजिए ताकि लोग जाने में वहीं से आ रहा हूं, उन्होंने ही कहा है। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल ले लिया और उठा लिया चप्पल और जा करके निकले कि साहब अब इनको एकदम उतावले हो रहे हैं कि कैसे जल्दी से बता दें जाकर मस्जिद नबवी में कि ये खुशखबरी आई है कि साहब जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा। अब ये जा ही रहे थे कि अब तलाशने वाले तो और भी निकले हुए थे, उतने में उधर से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाशते हुए आ रहे थे। तो पूछा कि अल्लाह के रसूल कहाँ हैं? कहा अल्लाह के रसूल बाग में है। कहा चलो, कहा नहीं मुझे 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 तो इत्तला दे रही है। कहा क्या क्या खबर देना आपको? कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत पे जाएगा। कहा हुजूर ने फरमाया? कहा ये चप्पल है, अभी वहीं से आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये बात आपको बोलना नहीं है, ये बात पब्लिक में नहीं बोलनी है। बोले नहीं मैं बोलूंगा, अब ये जिद पकड़ लिए मैं बोलूंगा, ये बोलने नहीं देंगे। अब अबू हुरैरा मान नहीं रहे इनकी बात, एक खूफा मारा उनको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू हुरैरा कहते मैं भग से गिर पड़ा। अब उसके बाद इनको ले करके आए अल्लाह के रसूल के पास, जाने नहीं दिया उन्होंने कहा नहीं तुम चलो। ये इनको फिर पकड़ कर लेकर आए और आकर के अब वो कैफियत जो थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कैफियत क्या हो गई, खत्म हो गई। और आकर के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपने इनसे हज़रत उमर ने कहा कि आपने इनसे ये बात कही है कि लोगों को बता दो कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नत में जाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा रसूल अगर ऐसे कर देंगे पब्लिकली तो फिर लोग सारे आमाल, क्योंकि इसकी तशरीह तो लोग जानेंगे नहीं, और सारे आमाल से लोग क्या हो जाएंगे, हाथ अपना नीचे कर लेंगे और समझेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। जैसे आज आप कंफ्यूज हैं, ये बात उस वक्त भी उठी है, ऐसा नहीं है। ये मैं जो आपको बार बार तशरीह कर रहा हूँ इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप ये नहीं सोचेंगे मौलाना फिराता भी अपनी तरफ से सारी बातें बयान कर रहे हैं। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हालात को बताए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। अब सवाल यह है कि फिर ये हदीस आई कैसे? जब बात वहां तय हो गई कि नहीं साहब बोलना नहीं है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब उलझन तो इनको रही ही, लेकिन जब हज़रत उमर ने उस वक्त समझाया मामले को तो इनकी बात समझ में आ गई कि इस हदीस को डायरेक्ट बयान कर देने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी कभी हम लोग भी ऐसी बातें तलबा से करते हैं कि ये बात डायरेक्ट अवाम से करने वाली नहीं है। अब इसमें दो तीन सवाल और भी उठते हैं, अब इस वक्त बात कर लेते हैं वरना अभी हदीस के तशरीह बाकी है कि इसका मतलब हजरत उमर, दिमाग में ये बात आ रही कि हजरत उमर हुजूर से ज्यादा होशियार है। ये बात भी दिमाग में आ रही ना कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया और हजरत उमर ने उस पर जो है वो इस तरीके से बात करके, तो ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज्यादा नब्बाज है, ज्यादा जो है वो, ये बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त वो बात कही थी वो डायरेक्ट उस वक्त वही आई थी, उस वही की कैफियत में अबू हुरैरा को बात कह दी गई। अब उसके बाद कोई टेलीफोन तो था नहीं कि अबू हुरैरा को फोन करके बोल दे भाई चले आओ वापस आ जाओ। अब ये अल्लाह को कराना था कि हज़रत उमर की मुलाकात करानी थी और करा करके उस बात को, ये अल्लाह ही ने कराया ना कि ये बात जानी नहीं चाहिए पब्लिक में, वरना पब्लिक में अगर चली जाएगी तो मामला खराब हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने उसको कंट्रोल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है,
وہ जो कैफियत खुशी की होती है, आपकी जब कैफियत खुशी की होती है तो आपकी क्या कैफियत होती है? आप चाहते नहीं घर में कोई चीज ऐसी हो जाए मैं चल के सबसे पहले बोलना है? हर आदमी का होता है। तो वो उस कैफियत में वो बात कह दी गई। इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुदा न खास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दानिश्वर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दूर तक देखते थे। इसीलिए हुजूर ने क्या फरमाया कि लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद अल्लाह ताला किसी को नबी बनाता तो किसको बनाता? उमर को बनाता। हजरत अबू बकर की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, चलाना, लोगों को संभालना, लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह वाले हैं, तकवा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हजरत उमर की दूसरी शान है। हर सहाबी की अपनी अपनी अलग अलग शान होती है। हर आदमी सारे फील्ड का माहिर होता है, ऐसा नहीं होता है। अबू बकर के अंदर वो सिफत है, लेकिन ये सिफत जो नबूवत को संभालने वाली है, वो सिफत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बड़ी है। लिहाजा ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई अजनबी तो नहीं है, ये मकसद यही था कि जो मैं बात बताने जा रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि अजनबी आदमी यहाँ मौजूद हो और वो मेरी बात को समझ ना पावे और फिर पब्लिकली वो बात शुरू कर दे और मामला क्या हो जाए, खराब हो जाए। ये माना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम में से कोई आदमी अजनबी तो नहीं है? और ये वजह हो सकती है कि इन्हीं लोगों के लिए तो हमको बशारत दी गई है कि इनको खबरें सुनाओ, दूसरा आदमी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये वजूहात जो है वो हो सकती है जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात की समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा